ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹਰਦਿੰਦ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਥਵੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੈਗੇ ਆ ਮਿਸ ਐਨਾ ਬਸ਼ੇਰ, ਜਿਹੜੇ ਹਡਲਸਫੀਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ। she will speak you in English or little bit in Hindi, so hopefully you will enjoy the session. Hardin Overseas Pathway Education the page hai, and Huddersfield University, she's taking care of Huddersfield University of Huddersfield, and आज हम इनसे बात करेंगे रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी कोर्सेज, फीस स्ट्रक्चर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अदर थिंग्स लाइक स्कॉलरशिप कोई है, इनटेक कौन कौन से है, और व्हाट विल बी द हाई कमीशन का अभी क्या सीन चल रहा है, वेदर हाई कमीशन इज ओपनिंग, वीएफएस का क्या सीन चल रहा है। तो उस सारे चीजों में के लिए हम लोग बात करेंगे मिस एना के लिए। हेलो एना, हाउ आर यू? Hi, Abhi. Thank you for having me over. I'm good, thank you, and I hope you and all the audiences listening to this session is doing great. So, as you've already introduced me, I would like to introduce the university now. The University of Huddersfield, which is one of the top-ranked university in the UK. We are pretty much centrally located, and location-wise, so we are very near to Manchester, Leeds, Bradford, and 2 hours from London, and there are direct connectivities to all these places. So our location is up there. I'm talking about the rankings of the university. Ranking is also great, teaching ranking, employability ranking. I would answer them one by one if there are any questions related to university. थोड़ी सी वॉइस आपकी डिस्टर्ब है। आपने कुछ बोला कि टुडे इज फ्राइडे एंड सो सम रिलीजियस पार्टिसिपेशन इज गोइंग ऑन। सो मैं चाहता हूं कि आप एक बार ऑडियंस को भी बता दीजिए। Yes, apologies about that. It's just a timing Friday prayers, and we can't help it. We'll have to bear with it. So if I need to repeat it, I would repeat it, and what I'll do, Hardeep, I'll share a presentation with you about the university with all these, whatever majorly we are going to talk about the rankings, about courses, fee structure. I will share it with you, and you can share it with the students and the audiences today. स्टार्टिंग है ना, एक्चुअल में अभी क्या है कि जो हमारे पंजाब के लोग हैं, दे आर वरीड अबाउट द हाई कमीशन, they are worried about the biometrics, they are worried about the medical. And do you have any updates by the universities or by High Commission, then when is everything will be normal, or when will be the intake whether the September intake will be coming live or for Indian students, specifically for Indian students, because COVID का जो अभी इंडिया के लिए चल रहा है वो काफी आने वाले टाइम के लिए थोड़ा सा परेशानी वाला सीन ही चल रहा है। तो मैं सबसे पहले अपने ऑडियंस को ये बताना चाहूंगा कि वेदर एक्चुअल में सिचुएशन क्या है। So currently, have you talking about the situation of pandemic? ये worldwide situation है, not just in India. तो अगर देखा जाए, we are slowly opening. ऐसा नहीं है, we are looking some of the positive signs. अभी फिलहाल के हिसाब से जो न्यूज़ है, September intake is going on, so that's the good news. सेकेंड न्यूज ये है कि जो वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स है बहुत सारी कंट्रीज में 1 जून को खुल चुके हैं और 22 जून को बाकी कंट्रीज में खुल चुके हैं, और इंडिया में होपफुली कंसिडरिंग ऑल ऑफ जिन कंट्रीज में खुल चुके हैं वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स, थोड़ा के भी बाद खुल जाएंगे विद इन अ वीक और 2, कंसिडरिंग बाकी कंट्रीज के खुल चुके हैं। वहाँ पे भी सेम पैंडेमिक सिचुएशन है, लाइक चाइना खुल चुका है, वैक्स सेंटर्स, वैक्स मलेशिया, वियतनाम, इन सब कंट्रीज में खुल चुके हैं। तो इंडिया में भी खुल जाने चाहिए कुछ आई थिंक वीक और 2, मे बी फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई मैक्सिमम। देन एक बार ये स्टेप बाय स्टेप होता है, वैक्स खुलेंगे तो बॉर्डर्स भी खुलेंगे, बॉर्डर्स खुलेंगे तो फ्लाइट्स भी खुलेंगी, फ्लाइट्स खुलेंगी तो स्टूडेंट्स भी आ पाएंगे। जैसे कि मेरे पास कल ही न्यूज़ आई थी, आई एम नॉट श्योर, बट मेरे पास जो न्यूज़ आई है लिंक है, काफ़ी ऑथेंटिक लग रहा है वो लिंक, कि 12th इंडिया में 12th 11th BSc एंड अदर बोर्ड एंड 10th के बोर्ड कैंसिल हो चुके हैं, तो बेस्ड उनके प्रीवियस मार्क्स उनको आगे ले रहे हैं। तो अगर ये आ रहा है तो हम भी आपके जो भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर रखा है और अप्लाई कर रहे हैं, हम भी वो कंसिडर करेंगे आपके प्रीवियस, जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट करी वो हम भी कंसिडर करेंगे।
So that's again another, you'd call it a good news or bad news. For some students, it's a good news. They don't have to give exams. Thirdly, बाकी चीजें खुल रही हैं आहिस्ता आहिस्ता. वैसे ही यूनिवर्सिटी भी हाफ खुल चुकी है. एंड जब आप आएंगे सितंबर में अभी टाइम है, तो अभी अपना प्रोसेस स्टार्ट कीजिए. उसके लिए वैसे भी अभी तो आपको आना है, और जब तक हम सितंबर तक पहुंचेंगे और तब तक और चीजें खुल जाएंगी एंड होपफुली सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा. बट वी आर डूइंग, आई विल शेयर दैट लिंक विथ यू आफ्टर द प्रेजेंटेशन. एवरी डे टू डे आवरली बेस्ड कोविड-19 से रिलेटेड क्या अपडेट्स हैं हम उस वेबसाइट पे अपनी वो अपडेट कर रहे हैं, तो आप उससे अपडेटेड रह सकते हैं. तो शेयर दैट लिंक, प्लीज फील फ्री टू शेयर इट विद योर स्टूडेंट्स. अच्छा, एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी, व्हाट इज द एंट्री क्राइटेरिया ऑफ द स्टूडेंट्स राइट नाउ, विद आईएलटीएस, विदाउट आईएलटीएस? सो कौन-कौन से कोर्सेज है जिसमें आईएलटीएस कंपलसरी है, और कौन-कौन से कोर्सेज है जिसमें हम लोग आईएलटीएस को वेवर दे सकते हैं, और वेदर इंटरव्यू इज कंपलसरी और नॉट? आईएलटीएस वेवर हो सकता है अगर आपके 12th के इंग्लिश स्कोर 65% और अबव हो फ्रॉम एनी इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड, चाहे सीबीएसई हो, स्टेट बोर्ड हो, आईबी बोर्ड हो, आईसीएसई, विच एवर बोर्ड हो. अगर आप प्लेसमेंट वाले प्रोग्राम, हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम, नर्सिंग, पेडियाट्री, इनके लिए आ रहे, तो हम इंग्लिश का कोर्स 70% और अबव देख रहे हैं 12th का, वेदर मास्टर्स और यूजी आईएलटीएस वेवर करने के लिए. अब अगर आपके पास ये स्कोर नहीं है और आईएलटीएस भी आप नहीं देना चाहते, तो और भी आईएलटीएस अल्टरनेटिव हैं. मैं आपसे वो भी सब हमारी वेबसाइट पे आईएलटीएस अल्टरनेटिव लिंक मेंशन है, वो मैं आपसे शेयर कर दूंगी. ओके. तो और हमारे अपने भी पासवर्ड स्किल टेस्ट स्टूडेंट्स कैन अपीयर इन दैट. ओके. आपने बताया कि 65% इन इंग्लिश रिक्वायर्ड, और वेदर इट इज फॉर एवरी, like it's not compulsory for CBSE or Punjab board or any other state boards? What about the state boards? Any board, English medium. Any board, English medium. Okay, medium should be in English. The English medium होना चाहिए. Okay. Yeah. The And medium what should be. about the interview? You mean the interview before we issue the task? University interview, Skype interview, did any? वो तो कुछ we take interviews for some course specific academic interviews. Talking Okay. about visa interviews, हम वो interviews में लेते हैं. हम ऑफर, अगर हमें थोड़ा डाउटफुल केस लगेगा तो हम ऑफर या कैश इशू नहीं करेंगे, बट वी डोंट टेक वो जो कैश इशू करने से पहले यूनिवर्सिटी केस टू केस में 1 in 100 we might do that, but we don't. Obviously, if a student is coming from from your consultancy or from any other, if you are working with one of our major partners through them, so we understand and we know that कि आपके जो students हैं वो आप उनको पूरी क्लीनिंग करके ही हमारे पास अप्लाई करेंगे. एंड अगर ऐसा फिर भी कुछ एक दो केस निकल आता है तो वो पता चल जाता है हमें वीजा रिलेटेड, पासपोर्ट केस से, तो हम आपको इंटरव्यू के लिए बता दें. बट इन जनरल हम नहीं ले रहे इंटरव्यू वीजा रिलेटेड. And what is the offer letter turnaround time? 3 to 5 working days, I would say, if it's a straightforward application. हाँ. Okay. 3 to 5. However, there are some courses like nursing and other courses जिसमें हमें academic portfolio required होता है, like architecture में स्कूल के पास ऑफर जाता है, तो उसमें थोड़ा टाइम, इससे ज़्यादा टाइम लग सकता है. Okay. But in general, not more than 3 to 5 working days. And what is the main basic courses? Let me talk about undergraduate courses and postgraduate courses and location. It is university having the multiple locations, or it is only one single campus? So now we have it for international students, one campus है, Huddersfield में है, and it's a campus university, huge campus I would say. And location, like I explained in my introduction, we're pretty much centrally located up north. So we are 30 minutes from Manchester, it's a big city known as industrial hub. 15 minutes from Leeds, 20 minutes from Bradford, 2 hours, 2.5 hours from London. And we have direct connectivity to all these places. One of the benefits
big benefit with staying in Huddersfield is that आपका renting rate is going to be 3 times less than what you would expect to pay in London. Good. And undergraduate courses like courses आपके पास कौन-कौन से undergraduation में? Sorry, you asked me this before. हमारे पास we have pretty much all the courses, nearly 500 courses, like 300 undergrad and 200 masters, and maybe more than that. So I would answer this question. I would rather answer this question that what we don't have available, because हमारे पास सब कुछ है except undergrad level पे civil engineering के. अब civil के बदले architecture भी कर सकते. Architecture is very good with us, top 5 in ranking. We don't have aeronautics or aerospace engineering. We don't have medicine. Other than that, we have pretty much everything. And what about if a student means any student can get the admission in the Huddersfield University? Means like arts, commerce, science, medical, non-medical, any vocational. Yes. Okay. Yes, and other MBBS में तो we have psychiatry, we have medical genetics, we have engineering, and it's one of the top ones with us. Okay. Any particular engineering courses like in civil engineering, mechanical engineering, and information technology में engineering? ये means every courses you have. And what is the fee structure? Mechanical, automotive, engineering design, information systems, Okay. IT related, computing, everything. Anything post graduation में PG? सब तो वो PG में, ये सब PG में भी अवेलेबल है. PG for 1 year और PG for 2 year? मास्टर्स आपके पास 1 साल की है या 2 साल की है? अगर 2 साल की है तो इंटर्नशिप कौन-कौन से कोर्सेज में है? हमारे पास हाँ जी सब कुछ मोस्टली काफी बिजनेस स्कूल के कोर्सेज एंड इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटिंग के कोर्सेज में इंटर्नशिप है 6 months की. So it's 12 months plus 6 months, and we also have 12 months के मास्टर्स की. So it depends on your percentage. Entry requirement है अगर आपको नॉर्मल 12 months मास्टर्स में आना है तो 55% इन ग्रेजुएशन, और अगर आपको 18 months वाले में आना है तो 60% इन ग्रेजुएशन मिनिमम. एंड हमारे जितने भी यूजी हैं 99% अंडर कोर्सेज में पेड प्लेस में कॉल प्लेस में है, एंड इसमें रिक्वायरमेंट इज इन 12-60% मिनिमम. Internship. I'm talking about internship. Internship कौन-कौन से कोर्सेज? सब में, like I said, internship in UK is called as placement. तो placement हाँ, तो that's right. जितने भी हमारे अंडरग्रेड कोर्सेज हैं यूजी के वो सबमें इंटर्नशिप है 3rd year में 1 year की, और जितने भी मास्टर्स हैं उसमें सभी एवरेज से 40-50% में 6 months की इंटर्नशिप है. Okay. और मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग कंप्यूटिंग एंड बिजनेस प्रोग्राम्स में इंटर्नशिप है. जितने भी बिजनेस प्रोग्राम्स में इंटर्नशिप है उसके साथ जैसे इंटरनेशनल बिजनेस है तो उसका नाम होगा इंटरनेशनल बिजनेस 12 months वाला, और जो 18 months वाला होगा इंटरनेशनल बिजनेस विद प्रोफेशनल प्रैक्टिस. जो अगर कंप्यूटिंग या इंजीनियरिंग में होगा एडवांस कंप्यूटर साइंस विद प्लेसमेंट. It's like that. Okay, fine. And any fee structure? What is the fee structure for the undergraduate and post graduation both? So most of our business related courses are £14,500, and most of our engineering and computing are £15,500. And in सभी courses में आपको 2,000 to 3,000 pound scholarship है. £2,000 is guaranteed every year, and £3,000 बनाने के लिए फर्स्ट ईयर में या ओवरऑल मास्टर्स में एक्स्ट्रा £1,000 चाहिए. तो आपका डिपॉजिट 7th of August से पहले आना चाहिए. रिपीट द डेट, August 7th. तो आपको एक्स्ट्रा £1,000 मिल जाएगा. Okay. And what is the deposit for the cash? Any particular 15% or 10%? Minus £3,000 of your fees. That's the deposit for the cash. The full fees basically, but minus £3,000. So अगर 14,500 minus 3,000 is 11,500, then you have to pay 11,500. If a student is from the region of Punjab and Haryana, otherwise it's 50%. Why there's a difference? Because of UK rules and previous things. And इससे आप ही का वीजा 100% श्योरिटी हो जाएगा. आपको बैलेंस कम दिखाना पड़ेगा. And there are more. And I mean, if we issue you cash, it means your visa is like no problem.
ओके, एनीथिंग ऐसा ऐसा भी कुछ लग रहा है कि आगे आने में कुछ सीट्स अगर कम हो जाएंगी यूनिवर्सिटी की, इज इट कंपल्सरी के जिस बच्चे की आपने कंफर्मेशन दे दी फीस ट्रांसफर होगी और कैश इश्यू होगा उसको, कोई ऐसा तो नहीं होगा कि कैश नहीं इश्यू होगा? नहीं, एज लॉन्ग एज डिपॉजिट जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो आ जाएगा हमारे पास, और बाकी जो कंडीशन है ऑफर लेटर में वो फुलफिल है, पासपोर्ट दिया है, तो कैश आ जाएगा। अगर ओके, हम व्हाट इज डिले कैश? करते हैं पेमेंट में, हमारी डेडलाइन चली जाती है, फिर वो आप तो कैश नहीं आएगा, और आपने बेसिकली पेमेंट देर से करी है, एंड वो भी रिफंड हो जाता है, या फिर आप डेफर कर सकते हैं नेक्स्ट इनटेक। बट आई वुड वांट टू टेल यू फ्रॉम योर प्लेटफॉर्म, द लास्ट डेट फॉर अस टू इशू कैश इज 31st of August। तो आप अपनी सारी पेमेंट 30th of August तक करवा दीजिए ओके, मैक्सिमम, और हमारी एप्लीकेशन डेडलाइन है 31st of July। ओके, 31st of July। एंड व्हाट इज यस, अब आगे इसमें दो चीज मेरे को समझ में आई, अगर आप 50% देते हो तो आपको स्कॉलरशिप 2000 मिलेगी, अगर आप फीस फुल ईयर दे देते हो तो आपको स्कॉलरशिप 3000 पाउंड तक की मिलेगी। आपको इज इट दोनों राइट? केसेस में 3000 मिलेगी, आपको दोनों केसेस में 3000 मिलेगी, मगर जो आप पहले डिपॉजिट 100% कर रहे हैं तो 3000 माइनस करके करेंगे अगर 7 अगस्त से पहले कर रहे हैं। ओके, और अगर आपके जो होम स्टेट है पंजाब या हरियाणा, तो आपको वो 100% करना है, कंसिडरिंग यूकेवीआई का वीजा जो है वो आपका और स्टेबल हो जाएगा, आपको लाइक ऑलमोस्ट वीजा मिल जाएगा। that is fine। And anything about do you आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो फंड्स की वेरिफिकेशन कैसे करती है, जो करती है कि जो नहीं करती? अगर फाइनेंशियल बच्चा आपके मीडियम से आ रहा है, अगर बच्चा ऑब्वियसली एक रिकग्नाइज एजेंट से आ रहा है, आप सपोज आप किसी रिकग्नाइज, सपोज इफ अ स्टूडेंट इज कमिंग टू अस थ्रू यूरेनस, लाइक यूरेनस ने अभी ये आपके साथ अरेंज करा है, तो हमारे में लिखा है यूरेनस, तो वी नो कि वो आप लोग कर रहे हो, द स्टूडेंट इज कमिंग टू अस थ्रू होप। हमें पता है कि आप लोग के पास भी वीजा टीम है जो उनको प्रिपेयर करिए, और हम लोग आप लोगों को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वी वुडंट, हाँ अगर आप चाहते हैं कि हम करें, वी कैन सेट दैट फॉर यू, दैट्स नो इशू। बिकॉज अभी आने वाले टाइम में ना, अभी जो टाइम इज कमिंग, हाई कमीशन में अभी प्रायोरिटी की एम्बेसी फीस और सुपर प्रायोरिटी उन्होंने बंद कर दी है, तो दिस इज नॉर्मल। उसमें लगता है कि जो हाई कमीशन है इट विल टेक 1 month टू मोर देन 1 month फॉर टू वेरीफाई द थिंग्स, उसको रिजल्ट देने में 1 महीने से ज्यादा वो लगाएगा हाई कमीशन नेक्स्ट आने टाइम में। So you mean to say embassy ने क्या बंद कर दिया? आने वाला सिचुएशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। पहले क्या था, हम लोग प्रायोरिटी एम्बेसी फीस के साथ फाइल लगाते थे, तो उसमें जो टर्न अराउंड टाइम था दैट इज 1 week, 5 working days। तो अभी इट इज गोइंग लिटिल बी डिफिकल्ट, उसको समझ सकते हैं थोड़ा सा। एनीवे, दिस इज फाइनेंशियल, हमारी जो फाइलिंग डिपार्टमेंट है दैट विल बी दैट उनका मैनेजमेंट है कि वो कैसे स्टूडेंट को अंडरटेक करके उसको समझाते हैं अच्छे तरीके से कि फीस ट्रांसफर करनी इज मोर इम्पोर्टेंट टाइमली, और सो दैट वो सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एम्बेसी ऑलरेडी वो कह चुके हैं हम लोग 1 महीने से ज्यादा हम लोग टाइम लेंगे एक एप्लीकेशन को। सो इट तो आप खुद ही इज सोच लीजिए, अगर एम्बेसी, आई नॉट हर्ड दिस बाय द वे, लाइक मैंने ये सुना है कि फिलहाल के लिए प्रायोरिटी सर्विसेज बंद कर रहे हैं, बट जनरल वीजा उसमें 2 weeks लगता है, तो ऑब्वियसली अगर रश बढ़ जाता है तो 2 weeks से थोड़ा ऊपर हो सकता है। तो कंसिडरिंग ऑल ऑफ दैट, यू शुड प्रिपेयर योर स्टूडेंट्स एंड योरसेल्फ वे बिफोर टाइम एंड वे बिफोर द डेडलाइन। तो आई वुड से कि आपके स्टूडेंट्स, अगर तभी हमने ये सब सोच समझ के डेडलाइन रखी है 31st August एंड 31st July एडमिशन डेट, एंड हमारी क्लासेस वैसे भी 20th September स्टार्ट हो रही हैं। तो यस, बट अगर यही कोविड का ये टाइम रहा और लाइक जुलाई एंडिंग अगस्त को खुलती नहीं, तो ये डिले हो जाएगा, एंड एम्बेसी विल आल्सो अंडरस्टैंड, एवरीवन वांट्स स्टूडेंट्स एट द एंड ऑफ द डे, स्टूडेंट्स से ही हमारी कंट्री चलती है, स्टूडेंट्स, और हम स्टूडेंट्स का भी जब तक आगे फर्दर पढ़ाई नहीं करेंगे फ्यूचर नहीं बनेगा, तो एवरी यू नो लाइक वी आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि लाइक forever ये बंद रहेगा, चीजें खुलेंगी। अगर एम्बेसी ने ऐसा कहा है, बट इट्स नॉट अ कंफर्म न्यूज येट कि इतना ज्यादा टाइम लगेगा। ये तो रश देख के जो पिछली बार हुआ था, मेरी कुछ स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा 2 weeks की जगह 3 weeks में आ गया वीजा, तो वही स्पेकुलेशन आ रहे हैं। हाँ, बट ये आ रहा है कि फिलहाल जब वीजा खुलेंगे तो प्रायोरिटी ही नहीं कर पाओगे आप,
आपको जनरल कैटेगरी करनी है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट सितंबर. August, September तक we are looking at opening priority. I mean, the visa offices should open priority and others. So, however, if they don't, you should prepare us to do things well in advance. अगर अपना maintenance and all पहले से maintain करके रखे वरना it shouldn't be a problem. एक क्वेश्चन है इंदर पनुका, you can see that 53.76% in MCOM in 2016, 68% overall, 60% in English in 10+2. Can I apply for the UK? आपकी यूनिवर्सिटी इसको एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी? बीकॉम में कितना परसेंटेज है? बैचलर्स में, सॉरी, एक मिनट. इन्होंने अपना क्वेश्चन बताया कि इन MCOM he has done MCOM मास्टर इन कॉमर्स इन 2016. वो ठीक है, उससे पहले बैचलर्स. हाँ, बैचलर्स भी तो बैचलर्स में कितनी परसेंटेज क्या होनी चाहिए? 55. अगर 55 है तो ही इज एलिजिबल और नॉट, बिकॉज इसकी 60% इंग्लिश इन क्लास. आप क्वेश्चन पढ़िए पूरा. बिल्कुल एलिजिबल है, मगर आपको इंग्लिश के कोई ना कोई टेस्ट देना पड़ेगा. जरूरी नहीं है सीटी, TOEFL, 54. He has mentioned that 54 in BCom. 54 है, 1% लेस है. अब अप्लाई कर दो मास्टर्स BSc, what happens, have a very strong statement of purpose. Okay, fine. Okay, Inder, you can apply with the statement of purpose. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਭੇਜੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦਾਂਗਾ. Next, and I hope we had discussed the courses. एक कुछ ऐसा मैसेज जो अभी बच्चों को जरूरी है, लाइक कोविड में they are worried about the future, they are worried about the intakes, they are worried about अगर कुछ ऐसा होता है कि फाइल हाई कमीशन में थोड़ा सा लेट हो जाती है, रिजल्ट में लेट हो गया, डिले हो गया, तो उसमें यूनिवर्सिटी का क्या अरेंजमेंट है? वेदर यूनिवर्सिटी डेफर क्या करेगी, जनवरी में डेफर करेगी और उसको 1 महीने की एक्सटेंशन दे सकती है? जो एकदम जनवरी में अवेलेबल वो हम कर देंगे. और अगर थोड़ा सा डिले ज्यादा नहीं है, केस टू केस बेस पे, वी आर नॉट एडवर्टाइजिंग इट ओपनली, बट केस अगर जेन्युइन कॉज है कि वो फ्लाइट में नहीं आ पा रहा है, उसका वीजा कोविड की वजह से 2 महीने डिले हो रहा है, तो हम उसका स्टार्ट डेट भी लेट से रखवा सकते हैं. आप हमें इन्फॉर्म कर दीजिए बस ऑन टाइम. ओके, बिकॉज आई होप मेरे को ये नॉर्मल लग रहा है इस बार ये चीज होगी, इस बार डेफिनेटली ये चीज होगी, क्योंकि हाई कमीशन जैसे ही खुलेगा एप्लीकेशन का, उसके पास रश हो जाएगा. जैसे ही रश होगा तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा ज्यादा रिस्पॉन्ड करने के लिए एप्लीकेशन को. तो देयर कैन बी सो मेनी एप्लीकेशन जो स्टक हो जाएंगी हाई कमीशन में, जिसमें ना हम कुछ कर पाएंगे ना हम कुछ कर पाएंगे. तो उस स्टूडेंट्स का क्या होगा? दैट इज माई वरी. तो कितना डिले होगा? 1 मंथ का होगा, वो होगा तो आप देखिए क्लासेस अगर 20 सितंबर को स्टार्ट हो रही हैं, तो एज पर UKVI ओनली आप 2 वीक्स तक ज्वाइन कर सकते हो. ओके, फाइन. सो एनीथिंग आज के सेशन में जो हमने मिस किया है वो एनीथिंग व्हाट जो आज के सेशन में हमने मिस कर दिया यूनिवर्सिटी ऑफ हडर्स फील्ड के बारे में, हमने क्या मिस किया? आई डोंट नो. Maybe I think we did the rankings, test ranking, teaching excellence framework. We are a gold rated university in that, and I'm sure a lot of students would know about it, and if not, you can research about it. It's a British government based ranking. So universities are categorized into gold, silver, bronze, and we are among the gold ones. Okay. And entry requirement भी हम पूछे. How much gap accepted is for nursing? How much gap? With genuine work gap. Gap is acceptable as long as you are able to define a genuine cause for the gap. It's not at all a problem. Okay. Whether nursing or any other course. Okay. Okay, fine, no issue. So
एनीथिंग मींस आपने बता दिया यूनिवर्सिटीज के बारे में कि दैट इज द वेरी गुड यूनिवर्सिटी, एनी प्लेसमेंट यू आर हैविंग प्लेसमेंट सेल, यू आर हैविंग स्कॉलरशिप स्कीम, ऑफर Yes. लेटर you are getting in 2 Yes. 3 5 working days maximum, cash letter you are starting in July, June, Yes. cash is starting in July. July which date? Yes. Yes. We are hopefully going to start the classes as soon as visa application centers open up in India. Okay. Second, our placement, we have 7 different placement cells on campus for 7 different schools and one big employability cell for students. We also have students for their visas and if some student is coming to us, usko dependent visa chahiye apne partner ke liye, kids ke liye, we help in that, no charges for that. And we also have students for part-time work and full-time, finding full-time work. We arrange job fairs. Our employability rate is 95% approximately on an average. So that's the good news. Teaching, for teaching we are number 1 by time. We're a gold rated university. Visa success rate in the past years is 100% from India. So that's good news. Okay, one question is there. BSc Nursing 2006 with continuous experience. Can we take the candidate for the Master in Nursing? Yes. Yes. You And our see that- nursing is NSE registered. Okay, right. So, Anna, this is very good informative session. I would like कि आप एक सेशन मेरे को और दीजिए. आज थोड़ी सी डिस्टर्बेंस थी हमारी, तो कुछ क्वेश्चन हमारे मिस हो गए हैं. तो आई वुड लाइक कि आप नेक्स्ट वीक मेरे को एक सेशन और दीजिए जिसमें हम लोग और ज्यादा प्रिपरेशन करके थोड़ी सी वॉइस क्लैरिटी और ज्यादा होगी. सो इफ यू हैव टाइम तो मेरे को प्लीज नेक्स्ट Yeah, सेशन sure. करिए. Bilkul, we will like together and have another session soon. Next week आप बोल रहे हो ना? हाँ, नेक्स्ट वीक मैं बोल रहा हूँ. हाँ, next week we'll make sure it's not it's not Friday. going to collide with the Friday timings here because we cannot help that. तो हम हाँ बिल्कुल next week Friday नहीं तो आप थोड़ा 12 नहीं I think how about 11 o'clock in the morning? Okay, right. We can schedule the session next week according to your availability. Sure. So Sure. it was very nice session with you. Thank you for coming on our platform. Sure. Welcome. Thank you very much, Anna. Welcome. Thank Thanks so much. And Satsika. Bye-bye. Bye. Take care. दोस्तों, she was Anna Busher, Huddersfield University ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਸੀ. ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੋਈ ਵੀ ਹਡਰਸਫੀਲਡ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਲੈਟਰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਿਸ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਸ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਵਿੰਗ ਗੁੱਡ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ. ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਅੱਛਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਗਲਾ. ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਫੋਰਨ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਛੁਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੈਂਡ ਯੂਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆਫਰ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏਗਾ. ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੁਣ ਲਓ, ਯੂਕੇ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ. ਅੰਬੈਸੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਅੰਬੈਸੀ ਫੀਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ. ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ ਅੰਬੈਸੀ ਫੀਸ ਚੱਲੇਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਯੂਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੈ ਦੈਟ ਵਿਲ ਗੋਇੰਗ ਫॉर ਦਾ 1 month ਬਿਯੋਂਡ. 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਨੂੰ. ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ. ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ. ਵੂਮਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਈਮੇਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ. ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਇਸ ਈਮੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੈਂਡ ਕਰੋ, ਅਸੈਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ. ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਸਟੇਇੰਗ ਲਾਈਵ. ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁਪਹਿਰੇ 3 ਵਜੇ. ਤੇ ਜਿਹੜੇ
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੈਡਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਰੱਖੋ ਤੇ ਸੰਡੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੋਵਾਂਗੇ ਬੈਡਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ